we have seen force on the charge कितना होता है? F is equal to Q V cross B. Can you take the clue from this to solve this problem? Okay, let me write the formula here also. Since F is given by Q V cross B, can this formula help us to get the right answer? V is given, F is given. We have to find out C. On anybody will tell me? Bolo. Nobody? Can you try somebody? Okay. कैसे करेंगे बोलो? Just think a while and then you can attempt. Since force is perpendicular to क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ये जो फाइनल वेक्टर आ रहा है, it is perpendicular to both the vectors multiplied. Since F is perpendicular to V. Now you can try. Therefore, what? F dot V will be what? Dot product कितना होगा दोनों का? 0. 0 because okay, F V cos theta cos 90, therefore 0. डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते? Therefore कोफिशिएंट उनके मल्टीप्लाई हो जाते, 2 into 1 प्लस -3 into इधर j का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड k का क्या है प्लस -c into VA4 दैट साइड. देखो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए, 2 into 1 इसका 1 है, -3 into 2 -c into 4. डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एडेड टुगेदर विल बी इक्वल टू 0 इफ थीटा इज 90 डिग्री है ना. ये हो गया 2, ये हो गया -6 -4 c is equal to 0. -4 is -4c is equal to 0. This gives you c is equal to -1 है ना. 4 upon 4 and माइनस भी रहेगा. ठीक है. So this is slightly new question है ना. इसमें क्या था? You have to have the vector knowledge properly. Only formula was with you, but everything you have to identify with the vector knowledge. क्रॉस प्रोडक्ट का पॉइंट पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर होते हैं. फिर डॉट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन है इसमें. Anybody has any doubt in this question? बोलो. वेक्टर्स में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. If you have problem in vector, you just inform me on WhatsApp. I will sort out your problem. All right. Okay.
This was done. This was also done. ये एक velocity selector का था, ये direct question ही था. Put the value in the formula and get the answer. V is 36 kilometer per hour. 36 multiplied by 5 by 18 will give you meter per second. That's coming 10 meter per second. Now we know the formula. V is equal to E by B. If charge particle has to go undeviated, ratio should be equal to V. Ratio of both the fields. Magnitude of both the fields should be equal to V. 10 is equal to E is 2. E is to be found out. B coming to be 0.2. 2 by 10 will make it 0.2. Cross multiplied. Tesla. Direction what? Okay, डायरेक्शन किधर होगी देखते हैं. डायरेक्शन कैसे देते? E क्रॉस B से देते हैं ना. अगर अपने E इधर है, V is this side, B has to be this side, along EX, YZ. So along Z axis, along positive Z axis. पॉजिटिव चार्ज है. अगर निगेटिव होता तो फिर अलग नेगेटिव हो जाती. Again, if you have any problem, you can just go back to the basics. है ना. इसमें तो ऑफ कोर्स इसमें तो फार्मूला नहीं है अपने पास, वहां से निकाल सकते हैं. E क्रॉस B वाले फार्मूले से सोच सकते हैं थोड़ा सा. और I have given you clue. Charge has to be projected along the direction of E cross B. E से इधर जाएंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर इधर होगी, थंब विल दिस साइड. फिंगर्स को ऊपर रखो, थंब को इधर रखो ऐसा. फर्स्ट वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर सामने है, तीसरा वेक्टर इधर है. E क्रॉस B. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. This was slightly tricky question. Could you get the answers of all possible? देखो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन. फर्स्ट इज राइट. सिंस E is 0 and B is 0, तो ना तो फोर्स, ऑल द फोर्सेस विल बी 0. इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा. चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कौन चेंज करेगा? नोबडी. Therefore, V कांस्टेंट. तो ये सही है. B देखते हैं. E is 0 and B is non-zero. यहाँ से फोर्स E तो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी 0. मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा क्या? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. QVB साइन 0 कर लो, साइन 0 लिया. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा. एंगल सेट कर लो. उसमें उन्होंने कंडीशन तो दी नहीं है 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करना है किसमें. तो यू सेट द एंगल 0 और 180, तो नो फोर्स. ये भी सही है. थर्ड वन, E is non-zero, B is 0. तो अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, किसी भी एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता. तो देयरफॉर B can be 0. B will force due to B will be 0. तो velocity not V not constant. किसी भी एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को कैसे भी प्रोजेक्ट कर दो, 0 पे, 180 पर, 90 पर, और इवन छोड़ दो, वेलोसिटी मत दो, तभी भी फोर्स लगता है. फोर्स लगेगा
velocity will not be constant, not constant. Since force is non-zero, non-zero का मतलब force है, zero का मतलब force नहीं है. But कट हमने ऐसे कट कर दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ force है. So C is wrong. C is not possible. D, E is equal to zero. E is not equal to zero. B is not equal to zero. बोलो इसमें क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? क्विक आंसर. No, sir. बोलो. This is the testing point. Of course, this question was asked in JEE Advanced, but it is board level question. बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है. बोलो. अरे भाई अभी यही तो टॉपिक पढ़ा ऊपर. No, sir. I mean, Yes we or have no? constant. हाँ. Well, we is not constant. Eh? You are telling that, Yes, sir. but can be constant. You know, यही तो टॉपिक था ऊपर. Set the fields perpendicular to each other. Condition तो दी नहीं, कुछ भी condition दी है क्या? You have in all cases you have to check in all cases. All cases, it should be zero. Force should be zero. Then only nahi. I mean velocity should be constant in all cases. Means so. But if one of the cases they are in this forces non-zero, so it will not be. Without changing, you can adjust. Yes, we can adjust. If one of the cases you can adjust, so it will be right answer. है ना? कोई ऐसा केस है जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं हम? वेलोसिटी कांस्टेंट एडजस्ट कर सकते हैं क्या?
Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, screen was gone. Just let me bring it back. Hmm. Prabjot, please make me host. Are you there? Okay. कहाँ तक हुआ था ये? The last option, मुझे sir. निकल. It is again gone. क्या प्रॉब्लम है? लास्ट ऑप्शन देखो. लास्ट ऑप्शन में क्या है देखो, E is 0, E is नॉन जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मतलब दोनों प्रेजेंट है. एफ नेट कैन बी जीरो अगर तुमने उनको if velocity ऐसे दी which is the ratio of E by B and all three are perpendicular, net force 0 हो सकता है और velocity will be constant. So D is also correct. Are you getting this point? Last वाला जो है, this is the very crucial point. दोनों फील्ड होते हुए भी, दोनों फील्ड नॉन जीरो होते हुए, मतलब दे आर प्रेजेंट होते हुए भी तुम वेलोसिटी कांस्टेंट रख सकते हो अंडर दिस कंडीशन. क्योंकि यहाँ इन्होंने तो कुछ बोला नहीं है हमें कि 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. यू कैन सेट द all the three mutually perpendicular and you can project the particle with the velocity equal to E by B. यही तो केस था ना ये वाला. Velocity selector है ना, charge particle has to move undeviated. So you can manage if both the fields are there, you can manage it. Net force 0, velocity constant. तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए? A, B and D. C is none. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, इस sir. क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो इफ आई चेंज इट विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी कट करके डायरेक्शन लिख दे. तब क्या होगा? मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. तो ये केस भी सही हो सकता है. दोनों फील्ड ऐसे रख लो एक ही डायरेक्शन में और यहाँ से चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो, रेस्ट से छोड़ो. तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो इधर जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो फोर्स लगाएगी क्योंकि थीटा जीरो है. अगर वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसका फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एफ विल बी जीरो. और ये वाला एक्सीलरेट करेगा या तो इधर या इधर, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा पाथ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन कर दे, देन दिस विल आल्सो बी राइट. ऑल फोर विल बी राइट अगर चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. एवरी वर्ड मैटर्स है ना. चेंज इन वेलोसिटी लिखा है या चेंज इन स्पीड लिखा है या चेंज इन डायरेक्शन लिखा है, उस समय स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी जैसे से छोड़ेंगे. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज द फोर्स. कितना फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? एफ इज इक्वल टू क्यू ई. तो फोर्स जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें, तो उससे वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से
एक्सीलरेट होगी, टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आफ्टर दैट, ओके, तो cyclotron was done. Cyclotron is used to provide the energy to the charged particles, particularly positively charged particles, which are slightly heavier. Not for electron, because it will be out of resonance, because it is very light, speed will go up very faster. इसमें क्या होता है, cyclotron में both the fields are mutually perpendicular, and ये क्या है, what are these? ये डी शेप्ड हॉलो कंटेनर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 होगी। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो अपोजिट पोलैरिटी से इधर एक्सीलरेट होगा, डी की, फिर यहाँ आएगा, फिर इसकी अपोजिट पोलैरिटी होगी दूसरे डी की, इधर एक्सीलरेट होगा। एवरी टाइम उसमें एनर्जी क्यूवी ऐड होती जाती है। जब बहुत सफिशिएंटली एनर्जी हो जाती है, फिर यहाँ ऐड हो जाएगा क्यूवी, फिर यहाँ क्यूवी, फिर यहाँ पे बहुत सफिशिएंटली एनर्जी हो जाएगी तो इसको डिफ्लेक्टिंग प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। हाई एनर्जी भी हो जाती है, तब तक बार बार उसको एनर्जी मिलती। इसके जो फार्मूले हैं रेडियस का, टाइम पीरियड का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, वो जो हमने थीटा इज इक्वल टू 90 में पढ़े हैं, वो सब यूज होते हैं उसमें से। कभी कभी बोल देते हैं भाई एनर्जी का डेरिवेशन करो इसमें साइक्लोट्रॉन में, तो वही डेरिवेशन रिपीट कर देना है। बस रेडियस मैक्सिमम आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो इसकी, जब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पास में आ जाता है डी के, टच करने वाला था, उस समय डिफ्लेक्ट कराते हैं। ऑफकोर्स इसमें गैप है थोड़ा, बट एक्चुअल में ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट यहाँ पे होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए बाहर, डिफ्लेक्टिंग प्लेट शुड बी हियर। So radius will be equal to capital R, that is the radius of the D's. हमने यहाँ पे लिया है ना, रेडियस ऑफ द D's लिया, मैक्सिमम उसको क्लोज, उसको बिल्कुल पास तक ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये वी शुड हैव रिटन मैक्सिमम है ना, ये भी मैक्सिमम, जब कैपिटल आर ले रहे हैं तो मैक्सिमम है, उसके बाद जो है टच कर जाएगा उसको। यूजेस हमने देख लिए थे हॉस्पिटल्स वगैरह में। लिमिटेशन में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज उसका मास कम होता है, तो बहुत फास्ट स्पीड अप हो जाता है, तो वी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इफ दिस वैल्यू गोज अप तो मास आल्सो गोज अप, माइनस में है ना, तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2πm/qv। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कम हो जाएगी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो ये अनइक्वल हो जाएंगे, दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, तो जब रेजोनेंस की कंडीशन अपसेट हो जाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए, और उसमें होगा क्या फिर, जिस समय गैप में पहुंचा उस समय पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, तभी एनर्जी मिल पाएगी। अभी ये यहीं पर ही है, पोलैरिटी चेंज हो गई, ये स्लो डाउन हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो उस समय कुछ भी नहीं, उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील ही नहीं होगी। मेटल कंटेनर के अंदर है वो, मेटल कंटेनर के अंदर फील्ड 0 होती है, एक्ट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब यहाँ पहुंचा तो तब तक तो पोलैरिटी चेंज हो गई, लगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये माइनस हो गया, तो इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा नहीं, बाद में ये प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस या चार्ज यहाँ पहुंचा ये भी प्लस हो गया थोड़ी देर में, उस समय तो फिर तो रिपेल करेगा, उसको रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसको बिल्कुल जिस समय गैप में आ रहा है उस समय ही इसकी ये जो एसी, यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस ऐसे होता रहेगा एसी। एसी पढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई हियर इन साइक्लोट्रॉन?
चार्ज पार्टिकल को, अच्छा वर्किंग लिख लेना। वर्किंग में मैंने क्या बताया? ओके, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वर्किंग ही तुम्हें बता रहा था। वर्किंग में क्या लिखेंगे देखो, की पॉइंट लिखना है बस। चार्ज पार्टिकल को गैप में छोड़ा तो ये प्लस है, उस समय समझ लो वाली डी पॉजिटिव है, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है। चार्ज पार्टिकल विल मूव towards the right D and it will enter inside the D where electric field magnetic field is non-zero. It will take a semicircular turn, will come back to gap and now polarity will change. ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस है चार्ज पार्टिकल. It will enter into the other D. Energy given will be QV and this process will repeat every time. क्या 3 पॉइंट बताए? चार्ज पार्टिकल को बीच में छोड़ो यहाँ पे गैप में, उस समय पोलैरिटी डिस्कस कर लो. ये वाली प्लेट माइनस है, इधर अट्रैक्ट होगा फील्ड, फील्ड के अंदर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करके गैप में ले जाएगी, पोलैरिटी चेंज होगी और क्यूवी एनर्जी ऐड हो जाएगी. तो वर्किंग में ये लिखना है, तब 3 पॉइंट है ना. यहाँ पे लिख दूं मैं की पॉइंट, लेट चार्ज पार्टिकल positive charge is released at point P between the gap of 2Ds let right D is right D is right D is negative at that moment, therefore charge will move towards it and will enter into D and will enter where E is 0 but B is non-zero, perpendicular. It is perpendicular. Therefore, charge moves in circular path and comes to gap. Now, polarity of these changes. These changes, left D becomes negative and right D positive. Charge will accelerate. Charge will accelerate. Positive charge है ना, किधर accelerate होगा? Towards left D. And energy provided in each gap will be QV. But this process repeats. This process repeats. In other D also. Till charge particle gets sufficiently high energy. All right.
तो बस ये तुम कॉमन सेंस से लिख सकते हो, इतना इसमें बस क्या याद रखना है कि भाई अपोजिट पोलैरिटी की तरफ डी 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 की तरफ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये की पॉइंट है, यहाँ पे ही तुम भूलने के चांसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट जो था ना, बस ये याद है तो पूरा लिख सकते हो अपने अपनी तरफ से। दिस क्वेश्चन जनरली कम्स इन 5 marks. Write the principle, working diagram and one of the derivations, limitations, advantage. ये सब इसमें से कुछ 3 पार्ट पूछ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल में देखो ऐसे लिख सकते हो तुम, फिर से वापस चलते डायग्राम में। प्रिंसिपल में when charge particle is made to circulate in electrical and magnetic field, then it can sufficiently it can acquire sufficiently large energy. क्या बताया मैंने? If charge particle is made to circulate in perpendicular in perpendicular magnetic field, then it can acquire very large energy. You write in your own words. मैं dictate कर रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल में if charge particle is made to circulate strong magnetic field and high frequency electric field, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो भी ज्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, then it acquires high energy. ठीक है, तो वर्किंग एंड प्रिंसिपल भी तुम्हें आनी चाहिए बिकॉज दिस क्वेश्चन इज विल बी ऑफ 5 marks. Circulate in a strong magnetic field. Can you read it? Circulate in a strong magnetic field and high frequency strong electric field, then it requires high energy. All the points I have covered in this है ना, जो एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिए वो भी मैंने, डिसएडवांटेज वाला पॉइंट नहीं दिया एनसीईआरटी बुक में, या दिया होगा एक लाइन में, फार्मूला नहीं दिया उसमें, ये वाला पॉइंट लिमिटेशन वाला, ये extra point with the formula. The uses, limitations we have seen, or working and principle we have seen, and construction part you have to describe if it is asked. या केवल diagram पूछा तो diagram. And derivations I told you they are all same which we have seen in what is called case number 2, which was theta is equal to 90 degree. Okay. So now we are going to see the next topic. उससे पहले let me ask you one more question. मेरे क्वेश्चन ये देखो,
uniform magnetic field at following angles. Find path of charge particle. Find मतलब बताना है केवल. If theta is equal to 0, 45 degree, 90 degree, 120 degree and 180 degree. बोलो पाथ बताने सबके जल्दी से बताओ. ओके ठीक है, होमवर्क के लिए लो इसको. चलो charge particle is projected in uniform magnetic field at following angles. Find path of the charge. Find नहीं करने, right path of the, केवल लिखना है उसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. थीटा 0 है, 45 है, 90 है, 120 है, 180 है. ठीक है. Now we will be moving on to the next topic. नोट कर लो इसको. तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. मैग्नेट बनाना. सपोज तुम्हें है ना, एक दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं. वन इज द परमानेंट मैग्नेट्स मेड ऑफ द मेटल बार. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. वो परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो मैग्नेट बन जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, करंट बंद कर दो तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड विल वैनिश अराउंड द कंडक्टर. तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. पहले का टॉपिक क्या था? करंट. इट वाज फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना. अगर तुम्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट को रखा तो फोर्स लगता है. अभी हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? दो करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स लगेगा. ये टॉपिक नेक्स्ट रहेगा, है ना. इफ यू थिंक, दोनों को अगर सोचो, मैग्नेटिक फील्ड में करंट के ऊपर फोर्स लगता है. अभी हम क्या सीखने वाले हैं? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. इसका मतलब दो करंट कैरिंग वायर्स विल अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड. दैट विल बी नेक्स्ट टॉपिक. तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना. जैसे हम हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर से बनाते हैं. जहाँ अपना करंट मैग्नेट हमें नहीं लगाना, उसमें परमानेंट मैग्नेट, करंट कॉइल बना के छोड़ दो वहां पे, और मैग्नेटिक करंट भेजो उसमें, मैग्नेट बन जाती है वहां पर. दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेस. So let's see who were the scientists involved to get the formula of magnetic field due to current. So that is well-known formula, well-known law, Biot-Savart law. कौन है दो साइंटिस्ट? Biot-Savart. In fact, T silent है, but we will still call it Biot-Savart. Biot-Savart. So still we will call it Biot-Savart law. इसके लिए है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. फ्लेमिंग लॉ किसके लिए था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था वो? फॉर व्हाट इट वाज? बताओ जल्दी से. आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. बोलो फ्लेमिंग लॉ किसके लिए पढ़ा था? फोर्स के लिए था, ऑन द चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर. बायोट-सावर्ट लॉ फॉर फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड. मैंने ऊपर लिखा है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अभी. सपोज इन्होंने फार्मूला दिया है, ये कंडक्टर है सपोज, इसमें करंट इज गोइंग आई. ओके, इसको हटा दो.
कंडक्टर है ये, ओके, दिस इज कंडक्टर, वायर है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिया और यहाँ पे पॉइंट पी, at distance r, where we have to find out the magnetic field and its direction. Magnetic field कितनी होगी और किस तरफ होगी, ठीक है? तो इसका सेगमेंट डीएल ले लिया हमने और करंट इधर जा रहा है, वेक्टर लेंथ किधर होगी, इधर ही होगी, आईडीएल। वेक्टर लेंथ को कभी कभी आईडीएल लिखते हैं, आई तो स्केलर क्वांटिटी डीएल, तो वेक्टर लेंथ इधर ही होगी जिधर करंट होगा, और इधर आर है, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं इसको, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगी किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी, लेंथ पर डिपेंड करेगी, साइन थीटा पर डिपेंड करेगी, और डिस्टेंस के स्क्वायर पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड सभी एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, करंट पे भी डिपेंड कर रही है, जितनी लेंथ सेगमेंट के लिए उस पर भी डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर भी। डिस्टेंस ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, ज्यादा दूर हुआ पॉइंट तो कम फील्ड होती, पास में ज्यादा होती, बट स्क्वायर भी है, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया उन्होंने, कैन यू सी हियर, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैंने देखो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं बाद में, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं इसको, रुक जाओ। देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड पूरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, और एक आध कुछ नाम और भी कभी कभी देते, तो यूनिट देख के पता करो, टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी ड्यू टू स्मॉल, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ डीएल एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पर इतना छोटा सेगमेंट एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो किस पर डिपेंड कर रही है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नहीं इसमें 1/4 पाई तो है, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट है, वो भी ऊपर, मतलब जो 1/एप्सिलॉन नॉट था उसका काउंटर पार्ट म्यू नॉट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये तो कांस्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड कर रही, आई पर, मोर करंट मोर फील्ड, डीएल लेंथ, कितने बड़ा कंडक्टर की लेंथ है वो, मोर डीएल, मोर लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मोर फील्ड, एंगल ऑफ कोर्स इज न्यू पॉइंट हियर, एंगल पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा आल्सो, थीटा एंगल मैंने बताया आईडीएल और आर के बीच में, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे जैसे हमने ग्रेविटेशन फील्ड में था, कूलॉम्स लॉ में था, सिमिलर टू दैट 1/r²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे बोलो, कैन वी कन्वर्ट दिस इन वेक्टर, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेंगे, ये कांस्टेंट क्या है वील डिस्कस नाउ, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लें फिर सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस मच इज क्लियर, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, नीचे लिखा है मैंने इसके बाद। तो यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में भी पहले लिखते हैं फिर टर्म्स डिफाइन करते हैं, या फिर पहले टर्म्स डिफाइन करके बाद में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो म्यू नॉट क्या, लेट अस सी, यहाँ तक हो गया, देखो कोई डिफिकल्टी है डायग्राम में, No, sir. No, sir. ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम इज देयर इन आवर टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट द बायोट-सावर्ट लॉ, तो डोंट स्टार्ट राइटिंग वन पैराग्राफ,
सीधा फार्मूला लिखो पहले तो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी, सीधा फार्मूला लिखो, बाद में 2-4 टर्म्स डिफाइन कर दो, म्यू नॉट क्या है, आई क्या, आई आपको पता है, एक आध कुछ लिख दो, केवल फार्मूला विल बी इनफ फॉर एग्जामिनर टू गिव यू फुल मार्क्स, पूरी कहानी नहीं लिखते बैठो उसको टेस्ट। एंड उसके बाद डेरिवेशन भी करना पड़ता है, डेरिवेशन में भी टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे सेव योर टाइम, बायोट सावर्ट लॉ में फटाफट डायग्राम बनाओ, फार्मूला लिखो, टर्म्स नीचे थोड़े बहुत लिख दो, एंड देन डेरिवेशन। गॉसेस लॉ क्या था बाय द वे? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, याद है? इट वाज फॉर व्हाट, किसके लिए था, फील्ड के लिए था कि किसी और पॉइंट के लिए था? सर फ्लक्स, सर फ्लक्स, फ्लक्स के लिए था, फ्लक्स ड्यू टू ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, क्लोज Close सरफेस, how much it was? Q by upon epsilon naught. Q by epsilon, very correct. तो उसका पैरेलल फार्मूला ये, दिस इज पैरेलल टू द कूलॉम्स लॉ। फिर इसके बाद दिस हैड सम लिमिटेशन कि भाई डेरिवेशन बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इसलिए फिर स्विच ओवर टू द अदर फार्मूला, एम्पियर सर्किट लॉ, तो उसके पैरेलल फार्मूला है गॉसेस लॉ के पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टर्म्स वगैरह क्या क्या है, देखो कैन यू सी, ओके यहाँ पे फार्मूला है, देखो नाउ टर्म्स देखो, इसको थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं, देखो म्यू नॉट इज व्हाट, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वहां पे क्या था, परमिटिविटी था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यस परमिएबिलिटी, दिस इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, परमिटिविटी विद इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इसकी भी डेफिनेशन है, सच नहीं है ना, यू कैन से, you can make your own definition, permeability indicates how much magnetic field will be passing through it, more permeability, more magnetic field will be present in that medium, है ना, तो ये permeability कितना permit कर रहा है उसको, उसमें reciprocal there was reciprocal, you know, this is directly proportional, reciprocal of permittivity था वो, more permittivity less force less field, है ना, but ये directly proportional है। The absolute permeability of vacuum, its value is 4 pi into 10 to the power minus 7। यूनिट क्या आएगा इसका, देखो ये टर्म्स इधर भेज दो, ये नीचे भेज दो, टेस्ला इसमें मीटर होगा एक, और ये मीटर स्क्वायर है, एक मीटर चला जाएगा, टेस्ला मीटर बचेगा, और ये करंट बचेगा, करंट का नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो यू कैन गेट द यूनिट फ्रॉम हियर बाय चेंजिंग द साइड्स। अच्छा 4 पाई को नीचे ले आओ तो क्या बचेगा, 10 to the power minus 7, तो ये होल टर्म इज 10 to the power minus 7, न्यूमेरिकल्स में एज ए होल यू पुट इट 10 to the power minus 7, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होल टर्म वाज हाउ मच, 9 into 10 to the power 9, यहाँ पे वेरी लो वैल्यू 10 to the power minus 7, तो ऑफ कोर्स बाय सीइंग इटसेल्फ यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम आने वाली, 10 to the power minus 7 है ना, in almost all the cases calculated value of magnetic field will be very small, in fact, electric field was large because इसमें 10 to the power 9 ऊपर था, इसमें 10 to the power minus 7 ऊपर है न्यूमरेटर में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, जस्ट ट्राई टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर है क्या इसमें, देखो किसको वेक्टर बनाया बोलो, आई को तो वेक्टर बना नहीं सकते, dl क्रॉस r, r का यूनिट वेक्टर ले लो बस, जो r है ना उसका यूनिट वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देगा, तो r, एक मिनट है जस्ट, ओके ये लिख ही दिया मैंने, इसको डिलीट कर देते हैं, r कैप लिखना है बस, r कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to unit vector in the direction of r। देखो ये जो r था डिस्टेंस ये वाला,
इसका यूनिट वेक्टर आर कैप आ जाएगा। केवल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है बस, डायमेंशन वायमेंशन चेंज नहीं करता वो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म आइडियल। ठीक है, तो बट यू फाइंड समवेयर, कभी कभी ऐसा तुम्हें दिखता है यहाँ पर आर लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर आर कैप ना लिखे, केवल ऐसे लिख दिया आर, तब कैसे, तब चेंज क्या होंगे, फिर नीचे कुछ चेंज करना पड़ेगा। वेक्टर आर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे लिखते, कोई वेक्टर को ऐसे लिखते मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक ऊपर आर एक्स्ट्रा आ गया तो नीचे आर क्यूब करना पड़ेगा। कुछ बुक्स ऐसे लिखती है, नीचे क्यूब करना पड़ता है अगर आर लिखा हमने ऊपर, बट हमने ऊपर यूनिट वेक्टर लिखा है तो नीचे आर स्क्वायर रहेगा। डायमेंशनली इट विल नॉट बी डिस्टर्ब इफ यू राइट यूनिट वेक्टर इन न्यूमरेटर। तो आर कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, मतलब वो केवल डायरेक्शन बताता है। आर कैप केवल डायरेक्शन, डायमेंशन चेंज नहीं करता। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स के लिए ऊपर वाला फार्मूला सफिशिएंट है। तो डीएल क्या है? डीएल देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, डीएल इज द वेक्टर लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वही है जो प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था। ठीक है, डीएल इज द वेक्टर लेंथ हैविंग सेम डायरेक्शन दैट ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में रहेगा। और ये क्या है नीचे देखते हैं, let me see all these points together. R is what? Position vector of point P from DL. Theta is the angle between DL and R. ठीक है, सारे टर्म्स आ गए, इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है? Anything you want to ask? तो इसके अभी डेरिवेशंस will be done, only one or two derivations. वन से ही दूसरा भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर निकालेंगे हम लोग उसकी एक्सियल पॉइंट पर, फिर सेंटर पे, उसी से सेंटर पे निकाल लेंगे। ओके, टाइम इज डन। ओके, we'll wind up now. ये नोट कर लिया? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Just make it इसमें इसका एक क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी बुक का, सॉलिड एग्जांपल। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे देंगे? यहाँ से डीएल क्रॉस आर करो, देखो यहाँ पे आर भी, आर आर कैप मतलब आर ओनली, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन मिलेगी। देखो राइट हैंड रूल, वेक्टर राइट हैंड रूल लगेगा। जस्ट देख लो इसको, ये नोटेड, ये डन, इतना हो गया। देखो लिख लिया Yes, ये। sir. Yes, sir. देखो बस इसके, ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का, ये ट्राई कर सकते हो तुम। 4.5 नोट कर लो, नंबर नोट कर लो। 4.5 डायरेक्शन में एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन डॉट, डायरेक्शन कैसे आती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। इसमें भी तुम्हें डायरेक्शन की हेल्प लगेगी, ऊपर जाएगा या नीचे। देखो एक तो पॉइंट क्लियर है कि इस, देखो सब ये दोनों हमने इसमें ले लिए, पेपर के प्लेन में है, कंडक्टर भी पेपर के, ये वाला वेक्टर भी प्लेन ऑफ द पेपर है और ये वाला भी प्लेन ऑफ द पेपर है, दोनों एक ही प्लेन में है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो फील्ड जो है यहाँ पर या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा, दोनों में से होगा, क्योंकि फील्ड इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल क्रॉस आर है ना, डीएल क्रॉस आर है ना, आर कैप या आर लिखो, दोनों एक ही बात है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के परपेंडिकुलर, या तो वो अंदर जाएगा या फिर अंदर जाएगा या ऊपर आएगा, बस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। फिर से वही लॉजिक, फिंगर्स इधर रखो और सच दैट पाम शुड बी फेसिंग दिस साइड। फिंगर्स को ऐसे रख दो, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, चलो फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखो, पाम जो है तुम्हारा इधर फेस होना चाहिए, फिंगर्स ऊपर जाएंगे तो थंब किधर आएगा? फिर फिंगर्स अगर इधर है और तुम्हारा पाम, कर्लिंग, फिंगर्स इधर रखो, पाम इधर होना चाहिए, तभी कर्लिंग इधर आएगा। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्यों बोलते हैं?
पाम की तरफ, जिधर पाम है उस तरफ कर्लिंग कर सकते हैं। तो ये इधर रखो, ये इधर, तो थंब नीचे की तरफ जाएगा, देखो इट विल बी इनटू द पेज। क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने उस दिन इतनी प्रैक्टिस कराई थी, यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे फिंगर्स इधर रखो, पाम शुड बी दिस साइड। जब फिंगर कर्ल करेंगे तभी पाम की तरफ ही कर्ल कर सकते हैं। कर्ल करने की जरूरत ही नहीं है, थंब नीचे जा रहा है। तो इनटू द पेज दिया है, देखो यहाँ पे इनटू द पेज। That's all from my side. We'll continue tomorrow. Derivation and numerical we'll do tomorrow.